Blockly is here with its first ever speaker session. We hope you all make the most of this amazing opportunity. I am Vidisha Vanjare and I'll be the host for the evening. A little bit about Blockly. Blockly is building the next gen community of Web 3.0 enthusiasts with 500 people across our social medias, providing them with quality educational content in all fields of Web 3.0. Blockly also provides them with updates about the events that are happening in Web 3.0 space and help our community members get connected with like-minded people and grow as individuals. In conclusion, we at Blockly solving the massive problem of unstructured way of learning in this field of blockchain technology and Web 3.0 in a very interactive and community-based schooling approach. Today's speaker session will help you learn the basics of Web3 and introduce you to the ever-expanding world of Web 3.0. Let's get on with the introduction for our speaker for the evening. Ayush Panchmiya. He is an enthusiast blockchain worker working with a vision to be at the top of his field of Web 3.0. He helps Web 3.0 brands in the field of content creation, community building, metaverse events, NFT creation, and marketing. He also works as a consultant for tech companies. He's also the co-founder of Blockly and Map Social and has over 60,000 views on YouTube. This speaker session is followed by a Q&A session. You can put your doubts and questions in the chat box. Now let's not waste any more time and let's get started with the speaker session. Ayush, you can take over. Yeah, thank you so much, Vidisha, for such a good introduction. So, hey guys, introduction to de chuki hai Vidisha, and this session will be in English, basically in Hindi and English, so that people will get to learn more in detail and will connect more with each other. So, first of all, let me know in chats if there are people who don't know in Hindi. So, is there any someone who don't know about Hindi or they don't understand Hindi? Do let me know in the chat. So if that's the case, then we can also did this complete session in English as well. So let me know what's your views about that. And till then, I'll share my screen with you guys. Yeah, so let's go. Just give me a second. Yeah, so screen shared है Vidisha, बता सकते हो? Yes, it is. Your screen is visible. Yeah, sure, that's great. Just give me a second. We'll start. So, thank you so much. First of all, guys, सब लोग यहाँ आ चुके हो, and it's a great feeling right now because जो चीज़ें मैं पिछले 1.5 साल से सीख रहा हूँ, उसके basics मुझे आप लोगों के साथ share करने के लिए बहुत मजा आएगा आज. And ये session बहुत ज़्यादा important होगा तुम लोग के लिए. Basically हमने I'm trying to create that boundary for you guys. जो Web 2 में है and they are trying to enter into Web 3. So as a beginner, what are the contents जो हम लोग ये particular हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट व्हाट इज वेब3, क्यों वेब3 जरूरी है, व्हिच इज व्हाई वेब3, हॉट टॉपिक्स इन वेब3, wallets in web3, then how to create your first wallet in web3, we'll talk about that as well. Then we'll talk about what is blockchain technology, we'll talk about how it works. With that, at the end we'll talk about opportunities after all of these things, how you what kind of opportunities you grab as a beginner. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक थोड़ा कंटेंट मैं बता देता हूँ. बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू गाइस दैट द रीजन कि व्हाई यू शुड अटेंड दिस पर्टिकुलर इवेंट टिल द एंड, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट दिस इज द सर्टिफाइड सेशन. आप एंड तक अटेंड करेंगे तो एक सर्टिफिकेट दैट यू कैन शोकेस एज अ क्रेडिबिलिटी, बिकॉज राइट नाउ हम लोग वेब3 में ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि पीपल जस्ट नीड क्रेडिबिलिटी फ्रॉम पीपल. एट द एंड जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि आई विल आल्सो टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज एज अ बिगिनर, तो मैं जो आपको हाउ इट वर्क्स तक चीजें सिखाऊंगा. उसके बाद वही चीजें लर्न करके हाउ यू कैन ग्रैब अपॉर्चुनिटीज एज अ बिगिनर, हाउ यू कैन अर्न मनी एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ वर्किंग अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज अ बिगिनर. सो एट द एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम अपॉर्चुनिटीज जानना चाहते हो, सो मेक श्योर यू
learn all of these things. काफी मस्त सेशन होएगा, तुम लोगों के साथ काफी इंटरेक्शन होएगा, बिल्कुल बोरिंग नहीं रखूंगा, एकदम चिल सेशन रहेगा। एंड एट द एंड काफी चीजें हम अपॉर्चुनिटीज के लिए भी डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्वेश्चंस को भी यही सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, सो आई होप एवरीवन इज रेडी विद देयर बुक एंड पेन। थोड़ा बुक और पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज मैं जो चीजें एक्सप्लेन करूंगा आई होप अगर तुम लिख लोगे तो तुम्हारे लिए काफी हेल्प होगा, बिकॉज यहाँ से तुम लोग वेब3 के अंदर एंट्री करने वाले हो। दिस इज द बाउंड्री सेशन फॉर यू, जहाँ से तुम वेब2 से वेब3 में एंट्री करना शुरू करोगे। So let's start this session with very important question, which is what is Web3। अब देखो, काफी लोगों को ना ये क्वेश्चन होता है कि what is Web3, लोग Web3 कर रहे हैं, तुम NFT पढ़ लोगे, मेटावर्स पढ़ लोगे, ये सब कर लोगे, बट बहुत लोगों को ये एक important क्वेश्चन आता है कि what is Web3। अगर मैं सम अप करने जाऊँ what is Web3, so before that it's very important for us to learn that what is Web1, then we'll learn about what is Web2, फिर हम सीखेंगे कि दोनों के कंपैरिजन में what is Web3। ठीक है, सो ये डेफिनेशन या फिर ये एक्सप्लेनेशन तुमने कहीं रीड किया भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आज तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट, चलते हैं हम लोग पास्ट में, लेके चलता हूँ तुम लोगों को। हम लोग चलते हैं 1990s में। 1990s में हम सब बैठे हुए हैं राइट नाउ, और अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, अगर तुम लैपटॉप से कनेक्ट हुए हो तो कंप्यूटर पे तुम सर्च कर रहे हो, तुम्हारे पास एक yahoo.com करके है, तुम वहां गए और तुमने, जैसा यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है याहू, तुमने गए और तुमने वहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करी। वो इन्फॉर्मेशन याहू ने खुद चीजें लिखी हुई है, याहू के अलावा कोई और नहीं कर रहा है, मतलब याहू की एक डायरेक्टरी है, याहू पे तुम लोग गए, तुम लोगों ने सर्च किया और तुम लोगों ने कोई चीज क्लिक करके रीड कर ली, और ये सारी चीजें याहू ने ही डाली है, तुम कुछ नहीं डाल सकते। सो इन शॉर्ट द पॉइंट इज कि वेब1 में हमारे पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी था which is read only। सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीड ही कर पाते थे वेब1 में। अब चलते 2000, 10 साल बीत चुके हैं, 10 साल बाद चल चुके हैं, हमारे 10 साल बीत चुके हैं, और अभी आ चुके हैं हमारे मार्क ज़करबर्ग भैया, हमारे काम करने आ चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और ये सब आ चुके हैं, और ये सब ने वेब2 की शुरुआत की। ये लोगों ने क्या किया, बेसिकली वेब2 में ये शुरू किया कि उन्होंने सिर्फ जो याहू करा करता था कि सिर्फ हमें रीड का ऑप्शन देता था कि भैया तुम आ जाओ, तुम रीड कर लो, उसके अलावा कुछ और हम तुम्हें दे नहीं पाएंगे। गूगल आया, माइक्रोसॉफ्ट, और ये लोगों ने पूरा एरा चेंज किया और वेब2 को इंट्रोड्यूस किया। क्या किया, उन्होंने हमें ऑप्शन दिया कि तुम रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, अभी तक का एरा है ये, 2000 से लेके तो अभी तक का एरा, यहाँ से चीजें बदल रही है, वो कैसे बदलेगी वो तो हम सीख ही रहे। सो वो भी हम वेब3 में देखेंगे। बेसिकली व्हाट इज वेब2, कि हमें ऑप्शन मिला रीड एंड राइट का। इसका मतलब टेक जायंट्स ने हमें ऑप्शन दिया कि हम कंटेंट जो उनके पास अवेलेबल है वो हम रीड कर सकते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट, हम खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। हम लोगों को हमारा कंटेंट दिखा भी सकते हैं और खुद उनका कंटेंट कंज्यूम भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हिच इज व्हाट इज वेब3। अब वेब3 अलग क्या कर रहा है? अब बेसिकली वेब3 अलग ये कर रहा है कि वेब3 इज क्रिएटिंग अ होल कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर यू गाइस, जहां पर हमें तीसरा ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया है। वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो ये आता है वो है कि वेब1 मींस हमने देखा सिर्फ रीड ओनली, वेब2 मींस जहां पर हम रीड भी कर सकते थे और हम राइट भी कर सकते थे। नाउ इन वेब3 हम रीड भी कर पाएंगे, हम राइट भी कर पाएंगे, मतलब कंटेंट कंज्यूम भी कर पाएंगे, कंटेंट क्रिएट भी कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम हमारा डेटा ओन भी कर पाएंगे। और इसी रीजन से, बिकॉज हमें समझ में आया कि बहुत बड़े बड़े टेक जायंट्स ने हमें जो ऑप्शन क्रिएट किया कि जैसे हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमें उसके बदले हमारा डेटा लिया, और डेटा की वैल्यू इतनी ज्यादा है गाइस कि तुम उसकी वैल्यू सिर्फ वही इंसान से जाके पूछ सकते हो, या फिर वही इंसान तुम्हें बहुत अच्छे से समझा सकता है जो इंसान का डेटा यूज करके उसका एक तो पैसा लिया गया है। और हम सब के लिए भी एक ऑप्शन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ये सब देखते हैं। इंस्टाग्राम पे रिसेंट में मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने गलती से ना, मतलब 2-3 रील्स, गलती नहीं बट मैंने 2-3 रील्स ना जब इंस्टाग्राम के स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने कुछ डॉग्स के रील्स लाइक कर दिए, और मेरा पूरा रील्स अभी हर 2 रील बाद एक डॉग का रील आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो मुझे ट्रिक कर रहे हैं और मुझे और मेरा टाइम जो है वो स्पेंड करवा रहे हैं। मुझे इंस्टाग्राम और उनके खुद के एप्स या फिर उनके जो बिजनेसेस है, मेरा डेटा को यूज करके मेरा डेटा सेल भी कर सकते हैं, मेरा डेटा को कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वेब3 जो है वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे भी कि वाई वेब3, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि वेब3 जो है वो क्रिएट कर रहा है रीड, राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि वी कैन वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा डेटा ओन भी कर सकते हैं, वी कैन ओन आवर ओन डेटा। सो चलो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई वेब3 गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये तो समझ गया होगा कि व्हाट इज वेब3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई वेब3।
यार मैं ये तुम्हें इसीलिए समझाना चाहता हूँ, पहले तो समझा देता हूँ कि जब तुम कोई इवेंट में जाओगे, यहाँ से जाओगे, अगर तुम 4 लोगों के बीच में खड़े हो तो तुम्हें अगर ये पता है व्हाट इज वेब3 और व्हाई वेब3, तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि तुम आधी जंग तो जीत चुके हो। बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें अगर वो वेब3 की जंग में अगर तुम जा रहे हो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से वो चीज को कैप्चर कर पाओगे। तुम्हारे पास एक आधा जंग तो तुम जीत चुके हो, बिकॉज तुम्हें व्हाट इज वेब3 और व्हाई वेब3 पता है। व्हाई वेब3 अभी तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दैट रीजंस कि व्हाई वेब3 इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट अगेन ओनरशिप ऑफ डेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी। क्योंकि अगर हम हमारे डेटा को ओन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा से हमें कोई ट्रिक नहीं कर सकता, हमारे डेटा से हमें कोई फूल नहीं कर सकता, हमारे डेटा को कोई सेल करके हमें कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। अब ये इसी रीजन से वेब3 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लोग, और इसीलिए वाई वेब3 ये जो क्वेश्चन है इसका सबसे पहला रीजन बनता है ओनरशिप ऑफ डेटा। मतलब तुम्हारा डेटा तुम खुद ओन करोगे और तुम डेटा को सेल भी खुद के मर्जी से करोगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब कि वेब3 फोकस कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन पर। एंड नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मींस नो मिडलमैन। बेस्ट एग्जांपल देने जाता हूँ बैंक्स का। अगर तुम तुम्हारा पैसा आज के डेट में पेपाल को बेस्ट एग्जांपल पकड़ता हूँ, आज के डेट में अगर तुम तुम्हारे कुछ पैसा भेजना चाहते हो कहीं फॉरेन में या यही कहीं, तुम पेपाल को पहले तुम पेपाल को यूज करते हो, पेपाल कुछ खुद का पैसा जो है वो काटता है और वो पैसा वहां से कुछ चार्जेस लगते हैं, फिर वो पैसा जो है वो तुम्हारे जिसे भी तुम सेंड करना चाहते हो वहां पर चले जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि इफ यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन वेब3 ऐसा लेकर आ रहा है कि वहां पर मिडल मैन हट जाएगा। जो तुम्हें चार्जेस लग रहे थे ना, वो ट्राई कर रहा है कि वेब3 जो है वो हटा दे। मिडल मैन नहीं होना चाहिए, हमारे पास मिडल मैन ना होना, इसका मतलब कि वी टुगेदर ऑल द पीपल who are into this web3 community, or to all the people who are into this web3 ecosystem, are going to control all of the we can say that are going to control all of the things which are working on back end, front end and everything kind of stuff. इन शॉर्ट जो मेन चीजें चल रही है, जो पैसा जाएगा, ये सब जाएगा, वो एक कंपनी या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ओन नहीं करेगा। होल कंप्लीट टुगेदर पीपल विल ओन, और you can say that together people will take decisions and all of the people will take part in doing all of that stuff, and that's what we call as decentralization. एक और एग्जांपल समझाता हूँ, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तुम वेब3 में एंट्री कर रहे हो। अगेन डिसेंट्रलाइजेशन का एक तुम एग्जांपल देने जाऊँ तो बेस्ट एग्जांपल इज बैंक्स। बैंक्स मतलब हम हमारा पैसा जो है बैंक्स में रखते हैं। हमारे पास अभी गवर्नमेंट है और इसका हम देख चुके हैं कि हमारे लिए क्या गलत हो सकता है। ये है कि हमारे लिए डीमोनेटाइजेशन जो है वो जब आया था तो बहुत लोगों को समझ में आया कि यार हमारा जो मनी है उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास नहीं है तो गवर्नमेंट हमारे मनी के साथ कुछ भी कर सकता है या उसके साथ डिसीजंस ले सकता है। हाँ, काफी सारे इसके बैड पॉइंट्स भी है, काफी सारे इसके एडवांटेजेस भी है, and web3 ecosystem is trying to cater to that disadvantages, but that's the important advantage is that if there is decentralization is there, so we can own or we can say that हमारे पास एक middleman नहीं रहेगा, we will own our own things and we can take decisions and we can together have our own identity as well and that kind of stuff. Again, let's talk about the third reason कि why web3 is important is that identity. अब आइडेंटिटीज का रीजन ये है कि योर आइडेंटिटी इज सेफ इन वेब3। मैं मोस्टली बात कर रहा हूं ट्रांजैक्शन के साइड से। इफ यू आर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन थ्रू वेब3 स्टफ्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तुम ट्रांजैक्शन करते हो तुम्हारा आइडेंटिटी सेफ होता है। हाँ, अगेन बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार ये चीज पे तो काफी सारे डिसएडवांटेजेस है, बट इसके एडवांटेजेस इतने ज्यादा जरूरी है कि तुम वेब3 कम्युनिटी अगेन आर ट्राइंग, वेब3 पीपल आर ट्राइंग टू केटर टू ऑल ऑफ द डिसएडवांटेजेस वेरी सून एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। बट अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी बन रहा है कि इट्स आइडेंटिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। इसका मतलब हमारा आइडेंटिटी सेफ है, मतलब मैंने अगर पैसा भेजा हूँ किसी भी एक पर्सन को जो यहाँ पर मीटिंग में अवेलेबल है, तो मेरा जो आइडेंटिटी है वो सेफ रहेगा, मेरे वॉलेट का आइडेंटिटी सेफ होगा, एंड दैट्स हाउ दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा काफी सारे रीजंस हैं जो जिसके लिए वेब3 जो है वो आज जरूरी है, बट दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट रीजंस जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है एज अ बेसिक लेवल, बिगिनर लेवल, कि व्हाई वेब3 जो है वो जरूरी है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग वेब3 इन द टेक इकोसिस्टम। Again, let's move forward with the next topic, which is what are the hot topics in Web3. अब मोस्ट ऑफ द लोग, तुम लोगों ने ये चीजें काफी जगह सुनी होगी और मैंने सारे तो हॉट टॉपिक्स तुम्हारे लिए नहीं यहाँ लिखे हैं, मैंने वो टॉपिक्स लिखे हैं जो तुम्हें मैं लास्ट में अपॉर्चुनिटीज कैसे हर एक हॉट टॉपिक में ग्रैब करनी है वो मैं तुम्हें बताऊंगा एज अ बिगिनर। सो दैट्स व्हाई you have to know this things very important कि the first hot topic is crypto in web3.
सेकंड इज मेटावर्स, एक वेब3 का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और इसे तुम एज अ एप्लीकेशंस भी समझ सकते हो कि दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेब3 व्हिच आर इन अ वेरी व्हिच आर इन हम लोग कह सकते हैं बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बनकर हमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हर जगह. Very important. First is crypto, second is metaverse, third is NFT, dApps, then there is DeFi, then there is blockchain technology. मैं सबके explain कर देता हूँ. क्रिप्टो तो हम सबके पता ही है, हमारे सामने ही है. क्रिप्टो इज अ करेंसी. मेटावर्स इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड. एनएफटी मींस नॉन फंजिबल टोकन, जो हम लोग टोकन्स में समझने वाले हैं. देन देयर इज डैप्स मींस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, मतलब ऐसे एप्लीकेशंस है जो डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हैं, मतलब एक एप्लीकेशन बन रहा है जिसको तुम यूज करके सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, व्हिच देयर आर व्हिच देयर जो भी लोग वो एप्स को यूज कर रहे हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दैट एप्लीकेशन एंड दे कैन सी व्हाट ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग ऑन. मींस ऐसे एप्स जो डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हैं. DeFi मींस फाइनेंस के साइड में डिसेंट्रलाइजेशन ले आना, कोई मिडल मैन ना होना, जो मैंने पेपाल की बात की. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द हॉट टॉपिक इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ये चीजें कैसे वर्क करती है. सो मेक श्योर कि तुम अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आखिर तक बने रहो और सारी चीजें नोट डाउन करते रहो, क्योंकि मैं ये सारे हॉट टॉपिक्स में तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन सी अपॉर्चुनिटीज ये सेशन के बाद अभी से ग्रैब कर सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग. या चलो नाउ लेट्स वर्क ऑन कि गाइस वॉलेट्स इन वेब3. अब देखो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वॉलेट्स क्या होते हैं. देखो वैसे तो तुम्हें बताने जाऊं तो वॉलेट्स को तुम लोग बहुत इजीली एक्सप्लेनेशन में ये समझ सकते हो कि वॉलेट्स में हमारा बटुआ. अब बटुआ क्या होता है? बटुआ मतलब हमारा जो कोई भी वॉलेट हो जाता है, हमारा जो हाथ में कोई भी अगर वॉलेट होता है जिसमें हम लोग हमारा पैसा रखते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ऐसा ही एक वॉलेट का इकोसिस्टम है या फिर ऐसा ही एक वॉलेट का कंसेप्ट है वेब3 में. अगर तुम वेब3 में जो करेंसी चलती है, टेल यू दैट अबाउट दैट कि वेब3 में जो करेंसी चलती है वो है क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी मतलब मैंने बताया तुम्हें कि एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसे कोई एक करेंसी कोई एंटिटी जो है या फिर कोई गवर्नमेंट जब कंट्रोल नहीं कर सकता. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, और उसके जो बैकएंड में जो है वहां पर चल रहा है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. वो सब कैसे होता है हम जरूर आगे पढ़ेंगे. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉलेट. मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने वॉलेट एक अगर बनाना सीख लिया ना तो तुम वेब3 में एंट्री कर गए. और वो कैसे करेंगे हम, वो भी हम नेक्स्ट इसमें जरूर सीख रहे हैं अभी. बट बहुत जरूरी कि वॉलेट्स इन वेब3 जानना इसीलिए जरूरी है कि दिस इज द बैरियर. अगर तुम वेब3 में आना चाहते हो तुम्हारे पास वॉलेट होना ही चाहिए. बट अब क्या होता है वॉलेट? वॉलेट मतलब बटुआ जिसको यूज करके, जिसके अंदर तुम तुम्हारा पैसा रख सकते हो या फिर तुम्हारी करेंसी रख सकते हो. हमारे वर्ल्ड में वॉलेट हमारा पर्स होता है या ये सब चीजें होती है जिसके अंदर हम हमारा फिजिकल मनी, जिसे हम फियाट मनी कहते हैं, फिजिकल मनी रखते हैं और उसे हम स्टोर्स पे जा जाके यूज करते हैं. लेकिन अगर तुम वेब3 में आ रहे हो तो तुम्हें अलग स्पेशलाइज तुम्हारा वॉलेट होना चाहिए. ऑनलाइन वॉलेट होता है, वो वॉलेट के अंदर तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी होता है. ठीक है, अब ये चीज समझ गए हो कि आगे तुम वेब3 में जहां भी जाओगे या कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तुम तभी कोई भी चीज को में एंट्री कर सकते हो अगर तुम्हारे पास खुद का वॉलेट है. और वॉलेट का एक और मतलब है कि दिस इज द आइडेंटिटी, दिस इज योर आइडेंटिटी, दिस विल टेल हु यू आर. आपका एक एड्रेस होगा और ये सारी चीजें होगी जहां से पता चलेगा कि हु यू आर एंड व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट यू कैन डू इन दिस वेब3 इकोसिस्टम. कोई भी एप्लीकेशंस यूज करते हो, कोई भी मेटावर्स में जाते हो, कोई भी चीजों में यूज करते हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, हर एक एप्लीकेशन में ये एक इंपॉर्टेंट या फिर ये एक मैंडेटरी चीज है कि तुम्हारे पास खुद का वॉलेट होना चाहिए. ठीक है, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ टू क्रिएट अ मेटामास्क वॉलेट. नाउ लेट्स अब मैं ये चीज चाहता हूं कि तुम में से सारे लोग जो यहाँ पर मेरे साथ अवेलेबल है, वो सारे लोग यहाँ से मेरे साथ स्टेप्स को फॉलो करते जाए. मैं तुम्हें यहीं पर हाउ टू क्रिएट मेटामास्क वॉलेट ये तुम्हें सिखाने वाला हूँ. सो आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स जहां पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, मतलब जहां पर तुम लोग तुम्हारी जो हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा लैपटॉप खोलना है या तुम फोन पे कर रहे हो, फोन पे भी वाले भी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो और यहाँ से जो लोग लैपटॉप्स पे है वो भी कंटिन्यू कर सकते हो. सब लोग वॉलेट्स यहाँ से बना पाएंगे. तो मैं तुम्हें 2 मिनट्स दे रहा हूँ, तुम लोग तुम्हारा लैपटॉप खोल लो, तुम्हारे सेटअप लगा लो एंड ये सारी चीजें क्या है ये मैं तब तक तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मेटामास्क वॉलेट जो है वो क्या है और क्यों हम लोग मेटामास्क वॉलेट में ही बना रहे हैं. तब तक तुम तुम्हारा सेटअप कर लो. अब वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा हाँ तुम लोग को मेरी स्क्रीन दिख रहा होगा, तो चलो यहाँ आ जाता हूँ सूर्य तुम्हारे लिए अच्छा हो जाए. चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि क्यों हम लोग मेटामास्क वॉलेट बना रहे हैं. देखो मेटामास्क वॉलेट और क्यों मेटावर्स, पहले तो ये बताते हैं. मेटामास्क पहले तो एक ऐसा वॉलेट है जो वेब3 का सबसे मोस्ट सेफेस्ट,
एंड सबसे मोस्ट ट्रस्टेड वॉलेट है। इसके अलावा काफी सारे वॉलेट्स है, बट आई पर्सनली प्रीफर टू क्रिएट मेटामास्क वॉलेट। इसका रीजन मैंने पहला बताया, सेफ, दूसरा मोस्ट ट्रस्टेड, और तीसरा बहुत ज्यादा जरूरी वो ये है कि तुम मेटामास्क वॉलेट बना के सारे एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो। वेब3 के कोई भी एप्स को देख लो, वेब3 के कोई भी मेटावर्सेस को देख लो, सब लोग मेटामास्क वॉलेट को अलाउ करते हैं और सब जगह तुम्हें मेटामास्क वॉलेट मिल जाएगा जहां से तुम वहां एंट्री कर सकते हो। तो दैट्स दी थिंग, और इसीलिए हम मेटामास्क बना रहे हैं। I'll wait for 1 more minute, और तब तक मैं मेरा वीडियो स्टॉप करता हूँ, and you guys can start your we can say that you guys can start your laptop, you guys can open your phone, तुम लोग सेटअप तुम्हारा लगा सकते हो। I'll wait for 1.5 minutes और फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि Web3 का मेटामास्क वॉलेट कैसे बनाना है। So guys, let's start कि हम कैसे बना रहे हैं। So am I visible? I think am I visible? मैंने क्योंकि कैमरा ऑफ किया था। विदिशा, could you please confirm? Am I visible to you? मैंने कैमरा ऑन रखा है। No, it's still a black screen only. Okay, just give me a second. Okay, just I'll stop sharing and we can go forward. Just give me a second. Vidisha, could you please confirm? Did you share the screen? It's still not visible. No, I'm not talking about screen sharing. I'm just talking about the am I visible to you? Yeah, so is my screen visible, guys? Your screen is visible, yes. चलो, that's great. मैं दिखना जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए ये दिखना जरूरी है। So within 2 minutes we'll create our MetaMask wallet, guys. 2 मिनट में MetaMask wallet बनाएंगे। बने रहो सब लोग, मजा आएगा बहुत ज्यादा। And let's start. First of all, search MetaMask on your own ब्राउजर, कोई भी हो सकता है, बट मोस्टली गूगल ही करो, बिकॉज गूगल से तुम्हें क्रोम्स को यूज करो, वो तुम्हें हेल्प करेगा। विल क्लिक इन दिस मेटामास्क, और हम लोग सबसे पहले हमारे लिए एक हम लोग कह सकते हैं हमारे लिए हम लोग एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सो अभी तो राइट नाउ मेरे पास मेरा एक्सटेंशन अवेलेबल है। तुम लोग अगर एक्सटेंशन डाउनलोड करना चाहते हो, मेटामास्क के वेबसाइट पे चले जाओगे, गेट स्टार्टेड पे जाओगे, वहां पर तुम्हें यहाँ पर मेटामास्क डाउनलोड पे क्लिक करोगे। सो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यू विल हैव दैट देयर टू ऑप्शंस, फर्स्ट इज फॉर क्रोम एंड सेकंड इज फॉर फोन। So you can do anything which you want, जो भी चीज तुम करना चाहते हो, you guys can move forward with phone या laptop। ये I'll enter into this MetaMask का मेरा own thing, and I'll enter my password first. Just give me a second, and yeah. So first of all, let me tell you that this is how the whole complete MetaMask wallet looks like, और इसमें क्या चीजें कैसे करना है, how we want to create one more MetaMask wallet. I'll guide you through that. एक बार हम just give me a second. I'll again uninstall my MetaMask extension, and उसके बाद we'll start together, because I think कि यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। So remove from Chrome. Just give me a second. हम remove करते हैं, and then we'll again together, because I feel कि तुम लोगों को यही से बताऊंगा, तो it would be a great thing. चलो, let's start. तो इट्स रिमूव्ड। तुम लोग के लिए साथ में चलता हूँ। यहाँ पर क्रोम है, iOS है, एंड्रॉइड है, तुम लोग जहाँ करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल विल इंस्टॉल मेटामास्क एक्सटेंशन। हम लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और पहुंच जाने के बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ऐड टू द क्रोम। यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, विल क्लिक ऑन ऐड एक्सटेंशन। एंड टू ऑल द पीपल हु आर मतलब who have MetaMask wallet, make sure कि you guys will
मतलब रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, एंड बिकॉज हम इसके आगे भी सेशन 2 मिनट्स 3 मिनट्स बाद कंटिन्यू करेंगे। सो वेलकम टू मेटामास्क। ऐसा चीज तुम लोगों के पास आ जाएगा जैसे ही तुम डाउनलोड पे क्लिक करते हो, और देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट स्टार्ट। अब जैसे हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, यू हैव दिस थिंग इन योर एज अ फ्रंट यूआई कि हमारे पास ऑप्शन है इंपोर्ट वॉलेट और क्रिएट वॉलेट। अब नाउ देयर आर टू ऑप्शंस जो दिए गए, क्रिएट वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट। इंपोर्ट वॉलेट मतलब मेरे पास खुद का पहले से एक वॉलेट बना हुआ है, या फिर मैं कह सकता हूं कि देयर इज आई हैव टू क्रिएट माय ओन वॉलेट, बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग आवर ओन वॉलेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज द थिंग्स, थोड़ा रीड कर लो। कोई रीड कर, मैं मतलब रीड कर चुका हूं। यू गाइस कैन रीड योर ओन थिंग्स, बट यू आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री। यहाँ पर खुद का पासवर्ड बनाओ। I am writing my own password. You guys can write your own password. चलो, that's great। और तुम लोग को पासवर्ड डालने के लिए मैं I'm giving you 40 seconds, 40-50 seconds. Do that. पासवर्ड डाल लो, और पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो जो तुम्हें डालना है, anything which you want. Okay. चलो, that's great. I hope तुम लोगों ने पासवर्ड डाल दिया होगा। We'll wait for 2 minutes now. ठीक है? चलो 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 चलो, दैट्स ग्रेट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, आई होप सबने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट नाउ। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ विथ नेक्स्ट। ये वॉलेट कैसे बनाना है वो वीडियो है जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। अब नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग व्हाइल क्रिएटिंग मेटामास्क वॉलेट इज दैट दिस सीक्रेट वर्ड्स। These secret words are that words which will help you to enter or to log in your MetaMask wallet. See, these are the 12 words right now जो हमारे सामने आ चुके हैं। अगर तुम ये words किसी के साथ भी share करते हो, so they can enter into your MetaMask wallet, और MetaMask wallet से तुम्हारा सभी सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि ये जो 12 वर्ड्स है ये तुम किसी को नहीं बताओ। और बहुत लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि आयुष भाई तुमने तो बताया, तुम खुद के तो वर्ड्स बता रहे हो, बिकॉज मैं ये मेटामास्क वॉलेट बाद में यूज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 12 वर्ड्स है इसे हम लोग कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आई विल पेस्ट इट समवेयर एल्स। सो मैं वर्ड में पेस्ट कर देता हूँ इसे, आकर न्यू डॉक्यूमेंट बनाकर मैं ये 12 वर्ड्स को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वी आर पेस्टिंग दैट 12 वर्ड्स। हम लोग सामने शॉर्ट, शैडो, एनर्जी, नॉमिनी, वायरस, एथलीट, पोएट, ऑलमोस्ट वर्चुअल, लेंस, किडनी, गॉसिप। ये 12 वर्ड्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलते हैं गाइस मेटामास्क वॉलेट के तरफ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, दैट्स ग्रेट। अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं कि मेटामास्क सीक्रेट रिकवरी फेज हमें मिल चुका है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट। अब तुम्हें यहाँ पर ये करना है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट 12 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर, जो हम लोग कहते हैं कि पहले शैडो है, देन एनर्जी है, देन नॉमिनी है, ये सब चीजें बताना है। सो शैडो, एनर्जी, नॉमिनी, लेट्स क्लिक ऑन दैट, एंड जो हमें ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर में हमें करना है। ठीक है, तो ओके, शैडो, किधर है शैडो? ओके, शैडो, देन क्या है हमारे पास, शैडो, एनर्जी, नॉमिनी, शैडो, एनर्जी, नॉमिनी, देयर इज एनर्जी, एनर्जी, देन देयर इज नॉमिनी। आप तुम लोग भी तुम्हारा कर लो, एनर्जी, नॉमिनी, वायरस, एथलीट, पोएट। तो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स क्लिक ऑन दैट, वायरस, एथलीट, पोएट, देन देयर इज फिर क्या है, एथलीट, पोएट, ऑलमोस्ट वर्चुअल असिस्ट, ऑलमोस्ट virtual assist, then we have lens, kidney, gossip, lens, kidney, gossip। चलो, मैंने तो मेरे 12 वर्ड्स कर लिए। आई होप तुम लोग के भी 12 वर्ड्स हो गए होंगे। यहाँ तक आई वेट फॉर 10 सेकेंड्स नाउ, और फिर हम आगे चलते हैं। चलो, दैट्स ग्रेट। हम लोग यहाँ पर 10 सेकेंड्स हो चुके हैं। चलो, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंफर्म। अब वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव क्रिएटेड योर ओन मेटामास्क वॉलेट्स, ऑल डन। हियर यू आर, यू हैव योर ओन मेटामास्क वॉलेट नाउ। ये रहा तुम्हारा वॉलेट एड्रेस, तुम यहाँ से कॉपी कर लो, एंड दिस इज द थिंग्स। और यहाँ से राइट नाउ दिस वॉलेट इज ऑन इथेरियम mainnet। ठीक है, बट you can also add Polygon, you can also add Solana, you can add many blockchains,
सो दिस इज इथेरियम, ठीक है। तो अभी लेट्स मूव अगेन बैक टू आवर सेशन। आई होप सब लोगों ने क्रिएट कर लिया है right now। congratulations guys, you guys are there in web3 now। तुम लोग सारी चीजें कर सकते हो। you guys can do whatever you want in web3। तुम हर मेटावर्स में जा सकते हो, तुम हर क्रिप्टो के ट्रेडिंग कर सकते हो, तुम हर प्लेटफॉर्म को यूज करके चीजों को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations to each and everyone who have created their own metamask wallet right now। और जिनका metamask wallet बन चुका है that's great। जिनके पहले से बने हुए थे वो लोग तो web3 के अंदर है ही। सो गाइज आई होप तुम्हें यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। आई क्रॉस आउट ऑल ऑफ द थिंग्स और हम चलेंगे फिर से हमारे प्रेजेंटेशन की ओर, बिकॉज वी हैव टू रैप दिस थिंग। चलो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ लेट मी टेल यू दैट अगर तुमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीख लिया तो तुमने 60-65% मैं कह सकता हूं कि जो बिगिनर लेवल है वो तुम पार कर चुके हो, ठीक है। 50% 60% बिगिनर होने के लिए या फिर बिगिनर लेवल को से आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू नो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड यू हैव टू नो हाउ इट वर्क्स। चलो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और वो एक साथ इतने सारे ब्लॉक्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं, इसका मतलब जब इतने सारे ब्लॉक्स मिलकर खुद का एक चेन बनाते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं जिसका हम लोगों ने चेन बनाया, इसके अंदर हम लोग कुछ हमारा डेटा स्टोर करते हैं। That's how blockchain technology, that's what blockchain technology is। But it's very important for us to know that how blockchain technology works, और उसके लिए काफी सारे टाइप्स के ब्लॉकचेन हैं। बिफोर एंटरिंग इनटू दैट हाउ इट वर्क्स, आई वांट टू टेल यू दैट देयर आर सो मेनी ब्लॉकचेन्स। हम इथेरियम का नाम सुनते हैं, इथेरियम इज अ ब्लॉकचेन। बिटकॉइन जो पूरा सिस्टम चलता है, बिटकॉइन हैज इट्स ओन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व्हिच इज बिटकॉइन ब्लॉकचेन। देयर इज अनदर थर्ड व्हिच इज सोलाना, सोलाना भी एक ब्लॉकचेन है। there are so many polygon भी एक ब्लॉकचेन है। ऐसे काफी सारे ब्लॉकचेन है जिसको तुम लोग यूज करके तुम लोग तुम्हारी चीजें जो है या फिर कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके तुम वेब3 की इकोसिस्टम जो है वो बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिससे तुम लोग समझ सकते हो कि हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स। अब ब्लॉकचेन जो है वो जनरली ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ट्रांजैक्शंस मतलब पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन मतलब सिर्फ किसी ना किसी को पैसा भेजना। ब्लॉकचेन के लिए मोस्टली ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, बट डेटा को स्टोर करना और ये सब चीजों का जो कंसेप्ट है ये ट्रांजैक्शन के अलावा और भी ब्लॉकचेन्स में सेम ही यूज होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करता है, या फिर हम कह सकते हैं ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन कैसे वर्क करता है। देयर आर 3 पीपल, ए, बी एंड सी। हम लोग कहते हैं कि ए जो है वो क्या करता है, वो बी को 10 रुपीज भेजता है, और बी क्या करता है फिर 10 रुपीज सेंड करता है सी को। अब जब ए ने 10 रुपीज भेजा बी को, तो 10 रुपीज भेजने के बाद उसका जो डेटा था कि 10 रुपीज भेज रहा है, फिर ये जो ट्रांजैक्शन जो है वो सबसे पहले सेंड किया जाता है बहुत सारे अलग अलग नोट्स को। अब नोट्स क्या होता है, जब भी कोई भी ब्लॉकचेन होता है या जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा होता है ब्लॉकचेन को यूज करके, तो वो पर्टिकुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर काफी सारे लोग जो है, काफी सारे कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं जो मिलकर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं। अब सपोज जितने भी हम लोग यहाँ पर मीटिंग में बैठे हैं, हम लोग मिलकर एक ब्लॉकचेन चला रहे हैं, और यही ब्लॉकचेन को यूज कर ए ने जो है वो 10 रुपीज भेजा है बी को। ये जो 10 रुपीज जब भेजना चाहा ए ने बी को, तो जितने भी हमारे मीटिंग में राइट नाउ लोग अवेलेबल है, हम लोगों को हमारे लैपटॉप्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर एक नोटिफिकेशन आई कि ए बी को भेजना चाहता है ये 10 रुपीज, और इसका ये इंफॉर्मेशन है। मैं सबसे पहले इसे वैलिडेट करता हूं, मैं चेक करता हूं कि हाँ ये तो वैलिड रीजन, ये तो वैलिड लग रहा है, मैंने उसे राइट कर दिया, मैंने कहा कि ठीक है मैं इसे अलाउ करता हूँ। उसके अलावा तुम सब ने भी, जितने भी लोग यहाँ पर है, तुम लोग चेक किया और तुम लोगों ने इसे वैलिडेट कर दिया। यहाँ पर तुमने उसे वैलिडेट किया मतलब तुमने उसे चेक किया, तुमने उसे अलाउ किया। जब तुम लोग और जितने हम सब लोग जब उसे अलाउ कर देंगे, तो ये ए का जो ट्रांजैक्शन है वो बी को पैसा भिजवा जाएगा। विद इन फ्यू सेकेंड्स ए का ट्रांजैक्शन बी को हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ए का ट्रांजैक्शन बी को हो गया, तो ब्लॉक के अंदर ये डेटा स्टोर हो जाता है कि ए ने बी को सेंड किया, बट ऐसा लिख कर नहीं आएगा कि 10 रुपीज वॉज सेंड बाय फ्रॉम ए टू बी। वो एक हैश वैल्यू के फॉर्म में ब्लॉक में सेव हो जाएगा।
अब ब्लॉक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। ब्लॉक के अंदर दो चीजें होती है, पहला होता है हैश और दूसरा होता है प्रीवियस हैश। ठीक है, हैश मतलब जो अभी राइट नाउ जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका या उसका इंफॉर्मेशन। प्रीवियस हैश मतलब ए के पहले जिसने भी पूरे ब्लॉकचेन को यूज कर कर कुछ ट्रांजैक्शन किया होगा उसका वैल्यू। तो जो वैल्यू है हैश का मतलब जो ए ने बी को भेजा उसका है 1 2 3। ठीक है, उसका जो एड्रेस है वो है 1 2 3। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस हैश जो है वो सेव हुआ है 0, मतलब जो पिछला वाला जो एड्रेस है या फिर पिछला वाला जो हम लोग कहते हैं जो आइडेंटिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पिछला वाला जो ट्रांजैक्शन था उसका जो एड्रेस से हुआ है वो है 0। अब जब बी ने ट्रांजैक्शन किया सी को, मतलब जब बी ने सेंड किया मनी सी को, तो वो जो 10 रुपीज था वो गया B2C, मतलब जाने के पहले हम जितने भी मीटिंग में लोग हैं हम सबको उसका नोटिफिकेशन आया। अगेन सेम थिंग होगा, नोटिफिकेशन आएगा, मैं पहले देखूंगा, तुम लोग भी एक साथ देख लोगे, उससे तुम अलाउ करोगे। जब हम सब अलाउ कर देंगे वापस बी का वैल्यू, बी का जो ट्रांजेक्शन है वो सी को हो जाएगा, 10 रुपीज सी के अकाउंट में चले जाएगा। जैसे ही बी पैसा भेजता है अगेन डेटा जाएगा ब्लॉक 2 के अंदर, लेकिन ब्लॉक 2 के अंदर जो इस ट्रांजैक्शन का हैश है वो होगा 456, लेकिन जो प्रीवियस हैश जो हमने ए ने बी को ट्रांजैक्शन भेजा था वो इसमें भी सेव होएगा, विच इज 1 2 3। अगेन इसके बाद भी जो ट्रांजैक्शन होगा वहां पर जो बी ने सी को भेजा था उसका वैल्यू होगा विच इज इनटू प्रीवियस हैश, लेकिन जो नया आएगा उसका आएगा हैश। दिस इज हाउ ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ चेन बनाते हैं, एक का वैल्यू दूसरे उसमें, दूसरा का वैल्यू तीसरे के इसमें, तीसरा का वैल्यू चौथे के इसमें। दिस इज हाउ the whole chain of blocks works and this is how the blockchain technology works. This is how blockchain के अंदर transaction होता है। अब यही क्यों यही इसी तरीके का सिस्टम जो है वो जरूरी है। This system is important because this system is close to impossible to hack. ये सिस्टम को हैक करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्लोज टू इम्पॉसिबल। कैसे? अगर आज के डेट में मैं कहता हूं कि यार गाइस मैं क्या करता हूं, मैं ये ब्लॉकचेन को हैक करता हूं। अब हैक करने के लिए कितना इजी है, आप लोग सोचोगे कि मैं क्या करता हूं ब्रो, मैं ये जो हैश है ना मैं इसका वैल्यू चेंज कर देता हूं। जैसे मैं इसका हैश का वैल्यू चेंज कर देता हूं ये होगा कि ये तो ब्लॉक का वैल्यू बदल जाएगा। तो ब्लॉक का वैल्यू बदल गया मतलब मैंने ये ब्लॉक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन था उसको मैं घुमा सकता हूं। मतलब जब B2C जब ट्रांजैक्शन हो रहा होगा तो मैं वो मेरे वॉलेट का एड्रेस डालकर मैं वहां पर ट्रांसफर करवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज ये ब्लॉक के अंदर जब तुम हैश वैल्यू चेंज करोगे तो इसका हैश वैल्यू इसका हैश वैल्यू ब्लॉक 3 के अंदर का प्रीवियस हैश है। तो तुम्हें पहले प्रीवियस हैश को चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये ब्लॉक को चेंज करना चाहते हो तो अब ये ब्लॉक को भी चेंज करना पड़ेगा। ये ब्लॉक को चेंज करना चाहते हो तो इससे कनेक्टेड एक और ब्लॉक है उसे भी चेंज करना पड़ेगा, उससे एक और ब्लॉक कनेक्टेड है, उससे एक और ब्लॉक कनेक्टेड है, और ऐसे हजारों लाखों ब्लॉक्स है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तुम्हें वो सारों को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब तक तुम वो चीजों को चेंज करते रहोगे तब तक और 1000-2000 ब्लॉक्स ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब कि अगर तुम्हें जो भी चीजें करनी है विद इन इतना क्लोज सेकंड के अंदर तुम्हें करना होगा कि क्योंकि विद इन 1 मिनट देयर आर सो मेनी ब्लॉक्स दैट आर एडिंग ऑन अ डेली बेसिस, सॉरी ऑन अ मिनट बेसिस। सो इसीलिए दिस इज रियली क्लोज टू इम्पॉसिबल टू हैक। बट अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कि कोई भी सिस्टम हैक नहीं हो सकता, बट दिस सिस्टम इज क्लोज टू इम्पॉसिबल टू हैक। इसीलिए पीपल आर ट्राइंग टू गेट ब्लॉकचेन इनटू आवर ओन स्टफ, और वी कैन से दैट कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके आने के लिए लोग इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। Web3 is powerfully telling people कि blockchain technology and Web3 complete ecosystem is building on blockchain ecosystem, और you can say that blockchain technology को यूज करके complete Web3 ecosystem बन रहा है। आई होप कि तुम्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ गया है। अब क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, अगेन इम्यूटेबल, ये चीज तुम्हें समझाना जरूरी है। इम्यूटेबल मतलब एक बार जो ब्लॉक के अंदर डेटा एंटर हो गया वो डेटा नहीं बदल सकता है। डेटा एक बार सपोज जो ए का ट्रांजैक्शन बी को हो गया उसका जो डेटा था वो चेंज नहीं हो सकता है। दैट्स हाउ आई टेल कि अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम्हें सारे ब्लॉक्स का डेटा चेंज करना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू हैव टू अगेन हैक, और तुम्हें डेटा को तुम चेंज कर सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन इज द सेकंड रीजन कि क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आना चाहिए, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। तुम्हें यहाँ से समझ में आया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बहुत सारे लोग मिलकर उसका डिसीजन ले रहे हैं। मतलब A to B अगर उसको कोई ट्रांजैक्शन करना है ना तो अकेला मैं उसे वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ काफी सारे लोग हैं जो मिलकर ये टेक्नोलॉजी को रन कर रहे हैं। दैट्स द थिंग। अगेन द थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज आइडेंटिटी। तुम्हारा आइडेंटिटी सेफ है, और ऐसे काफी सारे रीजंस है जिसको तुम यूज कर सकते हो वाइल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर तुम बताना चाहते हो कि क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है।
सो इसके अलावा आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है, हाउ ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन वर्क्स एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस विद आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अपॉर्चुनिटीज एज अ बिगिनर. अब जिस चीज के लिए तुम लोग आए थे मैं वो चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ. ये सेशन हम लोग यही के बाद एंड करेंगे कि हाउ यू कैन ग्रैब अपॉर्चुनिटीज एज अ बिगिनर. बट बिफोर दैट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि तुम्हें चीजें समझ में आ गई है. यहाँ तक मैंने जो सेशन लिया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कुछ भेजे में घुसा है, तुम्हें कुछ चीजें समझ में आई है कि आयुष जो तुमने एक्सप्लेन किया था वो हमें समझ में आया, बिकॉज दिस आर द बेसिक्स ऑफ Web3. ठीक है, एवरीवन इज टेलिंग मी नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैट. मैं देख रहा हूँ तुम लोग के यस है, काफी लोग यस कह रहे हैं, और भी लोग तुम लोग तुम्हारा बता सकते हो. तब तक आई विल गो थ्रू माय थिंग्स कि मैं कोई चीज अगर मिस किया है सो आई विल एक्सप्लेन दिस बिफोर टॉकिंग अबाउट all of this stuff. Yes, we missed token वाला stuff, very important. हम लोग टोकन की चीजें भी बात कर रहे हैं अभी राइट नाउ कि व्हाट इज टोकन, वो मैं मिस कर गया, मैंने पीपीटी में ऐड नहीं किया, पता नहीं मैं कैसे भूल गया. सो आई विल एक्सप्लेन यू गाइस सून, और इफ एनीथिंग इज लेफ्ट आई विल. अच्छा गाइस, मैंने एक चीज तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया कि ब्लॉकचेन जो है वहां पर थर्ड रीजन ये भी बन जाता है कि इट्स एन ओपन टेक्नोलॉजी. मतलब मैं चेक कर सकता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी में क्या वर्क कर रहा है, और जितने लोग ये कंप्लीट हमारे सिस्टम में बैठे हैं सारे लोग चेकआउट कर सकते हैं. तो अगेन सेम थिंग, डिसेंट्रलाइजेशन. लेट्स टॉक अबाउट टोकन्स गाइस. मैंने ये चीज यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, मैं शायद भूल गया पीपीटी बनाते टाइम. तो चलो मैं आगे लेके चलता हूँ, तुम्हें टोकन्स एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को. अभी अपॉर्चुनिटीज के पहले टोकन्स के बारे में बात कर लेते हैं. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोकन, विद इन 2-3 मिनट्स में खत्म करवाता हूँ. टोकन मतलब ओनरशिप ऑफ डिजिटल असेट्स. टोकन्स मतलब कोई भी ऐसा डिजिटल असेट जिसको तुम ओन करते हो, जिसकी तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, या जिससे तुम्हारे लिए वैल्यू क्रिएट हो रहा है, ऐसा डिजिटल असेट को हम लोग कहते हैं टोकन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोकन्स. फर्स्ट इज फंजिबल टोकन. फंजिबल टोकन्स मतलब ऐसे टोकन्स जो चेंज नहीं हो सकते. अब क्या मतलब, क्या चीज बोल रहा हूँ भाई, क्या चेंज नहीं हो सकता वो ये है जिससे तुम्हें समझ में आएगा जब मैं तुम्हें नॉन फंजिबल टोकन मतलब NFT एक्सप्लेन करूंगा. सेकेंड टाइप ऑफ टोकन इज नॉन फंजिबल टोकन. नॉन फंजिबल टोकन मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ टोकन जिसको तुम बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते. सॉरी, मैंने आई थिंक पहले बोला था. फंजिबल टोकन मतलब ऐसा टोकन जिसको तुम चेंज कर सकते हो. नॉन फंजिबल टोकन मतलब ऐसा टोकन जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते. रियली सॉरी, मैंने तुम्हें उल्टी चीज एक्सप्लेन कर दी, वहां पर भी तुम्हें चेंज बता दिया था. अगेन, अब नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? देखो, नॉन फंजिबल टोकन मतलब ऐसा टाइप ऑफ टोकन जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते. मतलब एक ऐसा टोकन, एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल असेट जो एकदम यूनिक है. अगर वो मेरे पास है तो मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैं इसका ओनर हूं. वो सेम चीज किसी और के पास नहीं हो सकता. मैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, मैं खुद पर्सनली वो चीजों को चेंज नहीं कर सकता. इसी को हम लोग कहते हैं NFT. एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल KGF जो है वो मूवी आई थी, हम सब ने KGF 2 जो है वो मूवी देखा है. इतना ज्यादा हाइप था वो मूवी का कि बता नहीं सकता, और सब लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद भी आई है मूवी. KGF के जो डायरेक्टर्स और जो लोग पूरा मैनेजमेंट है, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि यार देखो, हमने मूवी तो लॉन्च कर दी, सब लोगों ने देख भी ली, इतना क्रेज आ चुका है कि हम क्या करते हैं, वो पूरे मूवी का BTS है, मतलब BTS मतलब जो बैकग्राउंड सीन्स है, हम उसे क्या करते हैं एज अ NFT लॉन्च कर देते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. और प्लेटफॉर्म्स काफी सारे हैं, OpenSea है, WazirX है, और काफी सारे हैं जहाँ को यूज करके वो लोग खुद के NFT को लॉन्च करेंगे. जैसे ही उसका NFT लॉन्च हो जाता है, जितने लोग KGF को इतने बड़े फैंस है, वो सारे लोग जाएंगे और वो NFT को खरीदेंगे. मैंने NFT खरीदा, मैंने वो BTS देख लिया, मैंने उसे वापस सेल पे डाल दिया. अगेन लुआई जो हमारे टीम मेंबर है, उसने वो NFT मुझसे खरीदा. फिर मुझसे जब खरीदा तो मैंने जब वो चीज खरीदी थी तो सपोज $10 की थी, मैंने उसे जब सेल पे डाला तो $20 पे डाला. लुआई ने खरीदा, लुआई ने भी सेम चीज सारे BTS देख लिया, उसे मजा आ गया, उसने वो NFT फिर से सेल पे डाल दिया $25 पे. एक और पर्सन ने खरीदा, और इसी तरीके से इस NFT की वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है. लोग उसे सेल करेंगे, लोग उसे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट कर उसमें आगे चीजों को खरीदेंगे. मैंने सिर्फ अब NFT का एक कलेक्शन होगा, वो कलेक्शन KGF है, जिसके अंदर काफी सारे BTS होंगे. मैंने कोई एक BTS खरीदा, सेम नहीं, जरूरी नहीं है कि तुम भी वो सेम BTS खरीदो. BTS मतलब बैकग्राउंड सीन्स, जरूरी नहीं है कि तुम वो बैकग्राउंड सीन खरीदो. चाह रहे हो तो तुम कोई और भी बैकग्राउंड वीडियो खरीद सकते हो, बट तुमने जिसे देख लिया तुम उसे सेल कर सकते हो. दिस इज हाउ यू कैन क्लेम दैट ओनरशिप, कि मैंने ये जो ओनरशिप है या फिर ये जो पर्टिकुलर NFT है ये मेरा है.
कोई और उसे नहीं कह सकता कि ये एनएफटी किसी और का है। अगेन इट्स अ यूनिक, वो सेम चीज कोई और खुद के एनएफटी बनाकर नहीं मिंट कर सकता। ये सिर्फ एक ही टोकन है जो तुम्हारे पास है, या फिर ये एक ही टोकन है जो केजीएफ वालों ने रिलीज किया है। ये सेम कोई चीज डुप्लीकेट कर कर उसकी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। इसको मैं कंपेयर करता हूं कि कैसे हमारा जो टोकन था जो फंजिबल होता है वर्क करता है। इथेरियम का एक टोकन है। अब इथेरियम जो है ये एक पर्टिकुलर टोकन है, एक ऑनलाइन डिजिटल एसेट है, क्रिप्टो करेंसी, एक करेंसी होगा या फिर एक क्रिप्टो करेंसी होगा जो तुम एज अ वॉलेट में तुम्हारे पास होगा। वो सेम चीज मेरे पास भी हो सकती है और उसकी वैल्यू भी मेरे पास भी जो है वो भी सेम है, तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो भी सेम है। इसी को हम लोग कहते हैं फंजिबल टोकन, बट हम लोग कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन, मतलब एक ऐसा असेट जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम ओन कर सकते हैं। अगेन सारी चीजें खत्म हो चुका है कि जो मैंने यहाँ पर बेसिक्स एक्सप्लेन करना था। टाइम अगर मैं देखने जाऊं तो इट्स 8:23 राइट नाउ। सो अगेन हमारा सेशन 1 घंटे के ऊपर हो चुका है। लेट्स फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज एज अ बिगिनर। आई अगेन मूव बैक टू हॉट टॉपिक्स इन वेब3, जो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अभी इतनी चीजें पढ़ के तुम कैसे वेब3 में ये सारी चीजों में तुम इन्वॉल्व हो सकते हो और कौन से अपॉर्चुनिटीज तुम ग्रैब कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो में तुम क्या अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो? देखो, क्रिप्टो, मेटावर्स, एनएफटी, डैप्स, डीफाई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब अलग अलग एप्लीकेशंस है। तुम्हें इन्हें काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और क्या से पढ़ोगे वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा इसके बाद की चीज में। बट तुम्हें इन्हें एक्सप्लेन, तुम्हें इन्हें समझना होगा। हर एप्लीकेशन अलग तरीके से वर्क करता है, हर एप्लीकेशन का खुद का अपना अलग टाइप का वे है जिससे वो वर्क करता है। बट ये बेसिक्स को सीखकर सबसे पहले तुम क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी ये कैप्चर कर सकते हो कि यू कैन स्टार्ट लर्निंग इनटू क्रिप्टो, यू कैन एंटर इनटू क्रिप्टो, बिकॉज मैंने तुम्हें मेटामास्क वॉलेट सिखा दिया। यू कैन बाय एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो राइट नाउ, तुम कोई भी क्रिप्टो बाय कर सकते हो, और तुम एनएफटी के अंदर या फिर हम कह सकते हैं कि तुम क्रिप्टो को ट्रेड भी कर सकते हो मेटामास्क को यूज करके। बिनांस और ये काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां तुम खुद का क्रिप्टो करेंसी क्रिएट भी कर सकते हो। हाँ, अगेन ये सारी चीजें तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, तभी ये चीजें करना। दूसरी चीज तुम अपॉर्चुनिटी ये ग्रैब कर सकते हो कि तुम कंटेंट राइटर बन सकते हो क्रिप्टो के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, तुम कंटेंट राइटर बन जाओ, क्योंकि तुम्हें बेसिक्स तो आ गया है। स्टार्ट लर्निंग अबाउट कि क्रिप्टो कैसे, क्रिप्टो का ब्लॉकचेन, मैंने तुम्हें जो ब्लॉकचेन बताया वो तो समझ गया, बट इस पे कैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितने ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीजें थोड़ा पढ़ लो। एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन कंटेंट राइटिंग वर्क्स एज वेल। यू कैन कैप्चर, वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम क्रिप्टो को समझकर तुम क्रिप्टो के अंदर कंसल्टेंसी दे सकते हो कि लोगों को बताओ कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तुम क्रिप्टो को लेकर कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरी। इसी तरीके से दिस आर दी सम अपॉर्चुनिटीज जो तुम ये सेशन के बाद कैप्चर कर सकते हो। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, विद इन 1 मंथ यू कैन गो टू दैट पॉइंट ऑफ लेवल जहां से तुम ये सारी चीजों को अपने अपने बेस्ड ऑन जो मैंने तुम्हें ब्रांचेस बताए वहां तुम कैप्चर कर सकते हो। बट अगेन, कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हो तो कंटेंट राइटिंग सीखो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो कंटेंट क्रिएशन सीखो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटीज इन क्रिप्टो एज अ बिगिनर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एकदम से क्रिप्टो के कंसल्टेंट बन जाओ जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को देता है। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, दोस्तों से शुरू करो। अगेन मेटावर्स, मेटावर्स के अंदर तुम लोग कोई भी मेटावर्स के अंदर जाकर, मेटामास्क वॉलेट है, तुम लोग एंट्री कर वहां पर लोगों से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। कनेक्शन बिल्ड करने के बाद तुम खुद की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम मेटावर्स खुद का क्रिएट भी कर सकते हो, बिकॉज मेटावर्स स्पेशल, जैसे मेटावर्स स्पेशल इज अ मेटावर्स जिसको तुम जाकर वहां पर खुद का स्पेस क्रिएट कर सकते हो, और वो इतना ज्यादा इजी मेटावर्स है। तुम यही मूवमेंट पे राइट नाउ स्पेशल पे चले जाओ, स्पेशल SPATIAL, स्पेशल मेटावर्स लिखो गूगल पे, चले जाओगे, खुद का मेटावर्स क्रिएट भी कर सकते हो। और मैंने ऐसे ही वेब3 के बेसिक्स पढ़कर ही एक अपॉर्चुनिटी खुद के लिए ग्रैब की थी, व्हिच इज मैंने मेरा पहला एक प्रोजेक्ट लिया था जहां पर मैंने उनको गाइड किया था, उनके लिए स्पेशल को यूज करके उनको एक मेटावर्स का सीन बना के दिया था, एंड आई चार्ज मनी फॉर दैट बिकॉज आई हैव मेटामास्क वॉलेट। मैं गया वहां पर खुद का साइन इन किया, चीजों को बनाया। अगेन एनएफटी, खुद का एनएफटी तुम खरीद सकते हो ओपन सी पे जाकर, तुम खुद का मेटामास्क वॉलेट है तुम्हारे पास। बट अगेन एनएफटीज क्या होता है वो भी तुम्हें मैंने एक्सप्लेन किया, बट और काफी सारी चीजें हैं समझना, एकदम से इन्वेस्ट मत करना। बट यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, और अगेन यू कैन स्टार्ट योर ओन एनएफटी जर्नी एज वेल, जहां तुम खुद का एनएफटी बना सकते हो। कैसे बनाना है, क्या से बनाना है, उस पर काफी जल्दी हम सेशन लेंगे। बट मेटामास्क वॉलेट और एनएफटी का बेसिक नॉलेज होने के बाद यू कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट। डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, इसको मैं ये थोड़ा टेक साइड आ जाता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तुम्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ गया, सो नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू गाइस कैन
enter into the development stuff as well. You can enter into Web3 as a developer. You can enter into Web3 as a आर्टिस्ट. यू कैन एंटर आर्टिस्ट जो एनएफटीज बनाता है, डेवलपर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मेंटेन करता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता है, जो अलग अलग चीजों को, जो एप्स बनाता है, जो जिसको हम डैप्स करते हैं, विच इज डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस. ऐसे एप्स बनाओ आईओएस के लिए, आईफोन्स के लिए, या जो भी है हमारे सबके लिए ऐसे एप्स बनाओ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बने हैं. डीफाइज फाइनेंस एप्लीकेशंस बनाओ जो या फिर फाइनेंस के ऐसे कुछ चीजों को बनाओ, टेक्नोलॉजीज बनाओ जिसको बट बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस बनाओ, फाइनेंस में घुसो और फाइनेंस को चेंज करो. सो राइट नाउ दिस इज हाउ सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज व्हिच यू कैन ग्रैब इन आवर ओन Web3, या फिर कह सकते हैं हमारे Web3 में, हम सबके Web3 में, बिकॉज इट्स डिसेंट्रलाइज्ड. तो मैं खुद का नहीं कह सकता, तुम लोग भी खुद का नहीं कह सकते. Again, Web3 is for all. You guys now from this point onwards, you guys can capture or you guys can enter into Web3 very easily. आसानी से कर सकते हो. But for that, I'm talking about our community. थोड़ा सा तो इतना explain किया, थोड़ा तो बात जरूर करेंगे हमारे community के बारे में. So right now we are running a community of 465 people right now in our WhatsApp group. It's we can say that it's an exclusive community जहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि we are spreading Web3 अपडेट्स. क्योंकि अगर तुम Web3 में आ चुके हो तो तुम्हें Web3 के अपडेट्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप का, जहां तुम्हें डेली अपडेट्स आ जाएंगे. बट राइट नाउ फ्रॉम दिस सेशन, जो लोग हमारे कम्युनिटी से ज्वाइन किए हैं, गाइज वी आर लॉन्चिंग आवर ओन डिस्कॉर्ड सर्वर. डिस्कॉर्ड सर्वर पे अलग अलग हम लोगों ने बनाए हैं. तुम मेटावर्स, एनएफटी, क्रिप्टो, जितने भी चीजों के बारे में, डैप्स, डीफाइज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जितने भी अपडेट्स तुम पढ़ोगे, तुम्हें कहीं ढूंढना ही नहीं है अब से अपडेट्स की, यार मैं अपडेट्स कहाँ देख रहा हूँ, क्या है. वी आर शेयरिंग एवरी अपडेट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ऑन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर्स एंड ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. बट डिस्कॉर्ड पे तुम चैट कर सकते हो, लोगों के साथ डिस्कशंस कर सकते हो. एवरी वीकेंड एंड एवरी वीक में हम लोग आपके लिए सर्टिफाइड सेशंस अराउंड हम लोग ला रहे हैं. मतलब सर्टिफाइड सेशंस ही नहीं, कुछ ऐसे मीटअप्स भी ला रहे हैं, मतलब वेज आपके लिए लेके आ रहे हैं, जहां से हम हर वीक में आपको एजुकेशन देंगे कि आप Web3 को क्या कर रहे हो, किस तरीके से पढ़ सकते हो. जैसे आज हमने सिर्फ बेसिक सीखा, इसके बाद एनएफटीज, क्रिप्टोज, जितने मैंने चीजें बताई, सब मैं रोड मैप से लेके, तो मतलब Web3 में घुसने से लेके, Web3 में अपॉर्चुनिटी से लेके, Web3 में पैसा बनाने से लेके, Web3 के एजुकेशन, सब चीजें तुम्हें हम लोग हमारे जो ब्लॉकवी, जो हमारा कंपनी है, दे आर ट्राइंग टू गिव यू वेरी सिंपल. अगेन कि जो मैं सामने दिखा रहा हूँ, ब्लॉकवी का कम्युनिटी जो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, हम लोग लॉन्च कर चुके हैं. डेली तुम्हें अपडेट्स आ जाएगा हमारे ग्रुप के अंदर. तुम्हें सारे अपडेट्स ग्रुप में मिल जाएंगे कि कौन सा ऐप क्या कर रहा है, कौन सा फाइनेंस एप्लीकेशन आ गया, कौन सी गवर्नमेंट ने किसको बैन कर दिया. हर वो अपडेट जो तुम्हें Web3 के लिए चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इवेंट्स के अपडेट्स भी हम लोग हमारे ग्रुप पे डालते हैं, हमारे कम्युनिटी में डालते हैं. यू गाइज आर देयर फॉर अस. देयर आर राइट नाउ 9 मेंबर्स जब तक ये कम्युनिटी के पहले, बट इसके बाद हमारे कम्युनिटी में तुम ज्वाइन करो. From this point onwards, WhatsApp group will be admins only, जहाँ तुम्हें updates simple आ जाएंगे. But if you want updates in structured way, कि NFT के updates NFT की जगह पर, Metaverse के updates Metaverse की जगह पर, join our community on Discord, join our community and let's do discussions, let's do GD sessions, let's do this kind of sessions more. And that's all from my side for today, guys. Thank you so much for patient listening. सब लोग यहाँ पर अभी तक रुके हुए हैं. There are 27 people. I'm so glad that you guys are there and you guys are interested in Web3. आ जाओ Web3 में सब लोग मिलके फोड़ते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत पैसा भी बनाएंगे, बहुत एजुकेशन भी लेंगे, चीजों को खुद के लिए करियर भी बनाएंगे. So that's how. Let's now move forward and again Linktree तुम्हारे पास चैट में आ चुका है. Linktree पे क्लिक करो और जाकर तुम डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, जाकर तुम हमारा ये भी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. नाउ Q&A सेशन करते हैं. जो क्वेश्चन है विदिशा, यू कैन आस्क and I'll answer the questions for them. Chalo. Okay, let's move on with the Q&A session. We have received some questions during the registration, so I'm going to ask those first. Okay. The first question is, how can a person with interest in accounting and finance enter the Web3 space? Okay, that's great. Nice question. Very nice question. देखो, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो फाइनेंस साइड से आता है या फिर कोई कॉमर्स साइड से आता है, ये साइड से आता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दिस दैट डीफाइज जो मैंने तुम्हें बताया, व्हिच इज डीफाइज, व्हिच इज डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, वहां पर ऐसे फाइनेंस
वैल्यूज बन रहे हैं, वहां से फाइनेंस एप्लीकेशंस बन रहे हैं जहां पर यू गाइस कैन डू अ स्टफ तुम एज अ कंसल्टेंट, बिकॉज अगर कोई फाइनेंस एप्लीकेशन बनाना है ना, तो वो एप्लीकेशन बनाने के लिए फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। एंड इफ यू गाइस आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मोस्टली जितने भी मेरे जो फाउंडर्स हैं जिनसे मैं कनेक्ट हुआ है, आई एम राइट नाउ वर्किंग विद सो मेनी ब्रांड्स, मैंने सब ब्रांड्स को, एंड मोस्ट ऑफ देम जो है वो डीफाई स्पेस से आते हैं। तो जो डीफाई स्पेस से आते हैं उनके टीम में एक अलग से टीम होता है जहां पर वो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, और वहां पर उन्हें फाइनेंस को लेकर रिसर्च करने बोलते हैं कि फाइनेंस सेक्टर क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरीके से करता है। सबसे पहला थिंग, यू कैन एंटर लाइक दैट। सेकंड, यू कैन एंटर इनटू द एनएफटीज एंड क्रिप्टो स्पेस, बिकॉज तुम लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हो, तुम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, यू नो द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द बेस लेवल, फियाट मनी से लेके क्रिप्टो करेंसी तक तुम्हें बेसिक्स काफी डिटेल पता होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। यू गाइस कैन एंटर इनटू इट एज अ कंसल्टेंट एज वेल, जहां तुम गाइड करते हो। बट अगेन ये वेब3 के बेसिक्स सीखो, वेब3 को डिटेल थोड़ा समझने की कोशिश करो, join or mix your commerce knowledge with this web3 knowledge, and by doing that start approaching clients, start doing internships in web3, start learning stuff कि कैसे चीजें वर्क करता है, and you guys can join and create opportunities for this for you like that. Yes, तो that's the answer to this question. I hope I answered that, और इसको हम ज्यादा डिटेल में जरूर डिस्कस करते हैं, it's a nice question. चलो, yeah, Vidisha, let's start with the next question. I would also like to ask the participants if they have any specific questions to either ask in the chat box or they can unmute and ask it themselves. Till everyone are asking the questions, I'm gonna ask you a next question, which is, will Web 3.0 achieve true decentralization ever? Good question. अब see, the point is कि complete decentralization is never going to be there. Complete decentralization is not the thing which again Web3 people are doing right now. Web3 people are focusing on creating decentralization on some topics. पूरा decentralization होना is little difficult, because मैंने जैसा तुम्हें बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सपोज हम लोग यही मीटिंग का एग्जांपल लेते जो मैंने लिया था, हमारे जब चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारा खुद का एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, हम लोग 28 लोग मिलकर वो ब्लॉकचेन को रन कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन जब हो रहा है ना, जब हम सब में से सबने उसे अलाउ कर दिया तो ट्रांजैक्शन हो गया। सपोज कोई ऐसा बंदा आया जिसने हम सबको कन्विंस कर दिया, हम सबका एक कॉमन फ्रेंड है जिसने आकर हम सबको कन्विंस किया कि ब्रो मुझे ये गलत ट्रांजैक्शन करने दो, हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन हम करवा दे और वो चीज खराब हो जाए। सो एट द एंड ऑफ द डे हम देखें तो वो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना इज नॉट पॉसिबल, बट द कंसेंसस मैकेनिज्म इज द मेन फोकस जो लाना चाहते हैं, जिसको यूज करके डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। कंसेंसस मैकेनिज्म मतलब ऐसा मैकेनिज्म जहां पर एक पर्सन आकर चीजों को नहीं कर सकता, एक पर्सन आकर या एक एंटिटी जो है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो खुद एक जिसका फाउंडर है, ये सब चीजें, दे जस्ट कांट टेक डिसीजंस फॉर अस। एंड अगेन जो तुम्हें बताया कि तुम्हें एनएफटीज करना, ये सब होता है, इसमें गैस फीस का कंसेप्ट होता है, जो भी अगेन डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट नहीं कर रहा है तुम बोलोगे, बिकॉज अगर वो खुद के एप्लीकेशंस लॉन्च करे दे विल चार्ज सम अमाउंट ऑफ मनी टू यू, बट अगेन कि वो डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। And there will never be 100% decentralization, but there will be 95% decentralization. So that's what the Web3 is focusing on. Chalo, that's great. Again, let's move forward with the questions. Again, I'm asking the participants if they have a question, they can unmute themselves. Acha, before like going into that, there are so many students की certificate कैसे करना है, guys. I forgot to mention that that तुम्हें हमारा community join, मतलब that's the steps which you guys have to follow to get our certificates. Join our community, हमारा WhatsApp group और हमारे Discord पर join कर लो, वहाँ पर till Monday you will receive your certificates, ठीक है। So you guys can join our community और वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे certificates मिल जाएंगे till Monday you will get your certificates. चलो, that's great. That's what I want to tell you guys. Chalo. Okay, Vidisha, let's move forward with the questions. Vidisha, am I audible? Yeah. Let's move forward with the other questions. Yes. Till we are waiting for questions from the participants in the chat box, another question is MERN stack necessary, or is there another option? Sorry, could you please repeat that? Is MERN, MERN necessary, or is there another option or alternative?
MERN, MERN, na? Yes. See, I feel if I'll explain that thing, na, it would not cater to the public which is available right now. It is a high level question. If I want to enter that, I have to talk about first what MERN is and uska basic समझाना पड़ेगा, ये सब चीजें करना पड़ेगा. So I feel this question is not from the things which I explain. I feel कि जो questions है वो basics को लेके हो तो बेहतर है. So I feel yeah, so we can do that. Another question is, what Yeah, are you the can move. possible changes in the IT field after implementation of Web 3.0? Foreseeable changes in the upcoming future. Okay, that's great. This is good question. जो हम लोग आंसर कर सकते हैं. Okay, now let's talk about कि कौन से basics IT के चीजें हैं जो चीजें change होगा. देखो, first of all the thing is कि जो base IT के जो knowledges है ना, जो Web2 का जो structure बना है ना, वो structure तो वही रहेगा. वो structure वैसे रहेगा. जो values है वो तो वही रहेंगे. Values कभी change नहीं होंगे. But the way things change, but the way things works will change. वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम आईटी में सबसे बड़ी चीज तो ये चेंज होएगा दैट आईटी कंपनीज जो है दे जस्ट कांट बी लाइक कि नाउ वी आर द वन हु आर डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ. दे जस्ट कांट टेक डिसीजंस. सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि एक एंटिटी अब ये नहीं सोच सकता या एक बिजनेस जो टेक जायंट लेवल पे पहुंच जाता है वो ये नहीं सोच सकता कि नाउ दे कैन रन द वर्ल्ड और वी कैन से दैट दे कैन change the world. Or we can say that change to chalo, it's not a good word, but we can say that they just can't control the things which are going on in the world because now people will enter into that. People will take decisions, but again हर इंसान को तो मौका नहीं मिलेगा. But the people who are knowledgeable, but the people who are there who want to build that, they can do. And this is kind of things which I feel in the base level जहाँ पर IT field में change आएगा. So yes, I hope I answered that question. बट एकदम तो करेक्ट मतलब एकदम ऑन पॉइंट नहीं था बट बेस लेवल पे इट्स दिस इज हाउ इट गोस और जो चेंज होएगा. या सो विदिशा आई थिंक यू कैन टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल बिकॉज़ आई फील देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो आ चुके हैं हमारे चैट बॉक्स में भी. In the chat box we have, can cryptocurrency ever replace fiat currency? If yes, why? Or if not, why not? Yeah, that's a good question. देखो, I feel personally that cryptocurrency is not will never going to be the mainstream currency, and because see if we want to run any kind of country, and that's my opinion, किसी का और का opinion पूरा अलग हो सकता है, ठीक है. I feel cryptocurrency हम लोग मेन स्ट्रीम या ऐसा मतलब तुम किराना शॉप पे चले जाओ क्रिप्टो करेंसी दे दो, ये हो सकता है. कब? 10 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 8 साल हो सकता है, बट स्टिल फियाट करेंसी तो रहेगा. बिकॉज फियाट करेंसी गवर्नमेंट को या फिर एंटिटीज को, देश को पावर देता है, ऐसी एंटिटीज को गवर्नमेंट को पावर देता है जिससे वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक ऐसा फोन पे जैसा कोई ऐसा वॉलेट आ जाए जो बोले कि भाई मैं क्रिप्टो से तुम्हें मतलब जहाँ पेटीएम का क्यूआर कोड लगा है वहाँ मेटामास्क का वॉलेट भी लगा हुआ है बाजू में, तुम दोनों से पेमेंट कर सकते हो, ग्रोसरी पर भी और इधर उधर. बट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि पूरा क्रिप्टो करेंसी हो जाएगा, इट्स डिफिकल्ट. रियली आई फील कि वो चीज तो कभी नहीं होगा. एंड व्हाई, क्यों नहीं होगा, आई एक्सप्लेन दैट. आई होप क्वेश्चन का आंसर मिल गया रहेगा. Another question is how to become a Web3 consultant. That's great question. चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं. हाउ टू बिकम Web3 कंसल्टेंट. देखो, Web3 कंसल्टेंट बनने के लिए तो पहले तुम्हें Web3 के बेसिक्स आने चाहिए जो तुम्हें आ जाते हैं, ठीक है. मेरी भी जर्नी ही से शुरू हुई थी. मैंने बेसिक्स, मुझे काफी अनस्ट्रक्चर्ड वे मिला था, बट टिल दिस पॉइंट अगेन कि अगर तुम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तुम एज ए कंसल्टेंट बनना चाहते हो, सबसे पहले यू हैव टू लर्न Web3 बेसिक्स जो तुमने आज पढ़ा है. सेकेंड थिंग, आई पर्सनली वांट टू टेल, मतलब ये चीज मैं तो फॉलो नहीं करता, बट तुम अगर जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, तुम आना चाहते हो Web3 के एज ए कंसल्टेंट, चूज वन फील्ड. मैंने बेसिकली सारे फील्ड्स चूज, मेरे लिए तो सारे फील्ड्स, बिकॉज मुझे एक फील्ड चूज करना मेरे लिए डिफिकल्ट जा रहा था. आई वांट टू एक्सप्लोर, आई एम एक्सप्लोरिंग राइट नाउ कि कौन से फील्ड मेरे लिए सही है. बट राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फॉर एनी Web3 ब्रांड, ठीक है. अब Web3 कंसल्टेंट दो चीजों में पहले डिसाइड करो. पहला तो कौन से, सबसे पहला क्वेश्चन ये खुद को आंसर करो कि तुम कौन से एप्लीकेशन में करना चाहते हो. कौन से NFT में सिर्फ कंसल्टेंसी देना चाहते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में देना चाहते हो, या अगेन मेटावर्स में कंसल्टेंसी देना चाहते हो, कहाँ पर्टिकुलरली कंसल्टेशन देना चाहते हो. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि खुद को ये पूछो कि तुम टेक में देना चाहते हो या नॉन टेक में देना चाहते हो. टेक की कंसल्टेंसी अलग होगी. टेक की कंसल्टेंसी ऐसी कंसल्टेंसी होती है जहाँ तुम सिर्फ
टेक्नोलॉजी को लेके वैल्यूज देते हो कि एनएफटी बनाना है, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी बनाना, ये सब मैं तुम्हें कंसल्ट करूंगा। या दूसरा नॉन टेक्निकल कि यार अभी मार्केटिंग, अभी I am running a specialized marketing agency for Web3 and we are looking for this such kind of people. अगर तुम में से कोई बनता है so hit me up. So again very important कि अगर तुम मार्केटिंग जानते हो तो Web3 का मार्केटिंग सीखो, इट्स अ नॉन टेक, इसमें टेक्निकल नहीं आया। अब ब्रांड को ये बताओ, Web3 के बेसिक तुम्हें जानते हो, Web3 के NFTs या फिर जहां भी तुम चूज करते हो, उस ब्रांड को पकड़ो, उस प्रोजेक्ट को पकड़ो, उन्हें कहो कि यार मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूं टू स्केल योर कंटेंट, मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, I'll help you to create community, I'll help you to build community and all of that stuff. This is how you can enter into it. But again डेली बेसिस पर इतने अपडेट्स है, डेली बेसिस पर इतने चेंजेस है, डेली बेसिस पर इतने सारे एप्लीकेशंस आ रहे, इतने सारी चीजें हो रही है, इट्स हार्ड टू कैटर, बट हर चीज जाना जरूरी नहीं है। बेसिक्स जान चुके हो, आगे पढ़ो, अपडेट्स जानो, सारी चीजें करो, एंड यू गाइस कैन move forward with the consultation as well. And again वो freelancing भी आ जाता है, and you can build your own company as well through that. चलो, that's, I hope I answered that question. Before we move on with our last question, I would like to explain the certification process. Okay, we have our Linktree link in the chat box. There is a Google form and you need to join our WhatsApp group and our Discord group. And in the Google form, there is an option to upload a file that is a screenshot for both Discord and WhatsApp group. We need screenshots from your phone that you are in the WhatsApp group and in the Discord group as well. Then once you submit the Google form, you will get the certificate. The link to the Linktree is in the chat box right now. Also, so moving on with the next question is, can you explain the roadmap for Web3 or for Web3 developer? चलो, that's great question. मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूँ, गाइस कम्युनिटी में आ जाओ, बिकॉज नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है नेक्स्ट वीक, वो उस पर ही होने वाला है कि हाउ टू बी अ ब्लॉकचेन डेवलपर. We are inviting one people who is a big level पे बंदा बैठा है यहाँ पर हमारे ब्लॉकचेन डेवलपिंग फील्ड में, उसको इनवाइट किया है, नेक्स्ट सेशन उस पर ही होने वाला है. तो आई होप कि तुम पूरा सेशन ही सुन के जाओ. रोड मैप शॉर्ट में बताऊंगा, तो बताने जाओ तो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लो, उसके बाद स्टार्ट लर्निंग सॉलिडिटी तुम लोग सीख लेते हो. आफ्टर दैट सॉलिडिटी सीखने के बाद यू गाइस कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. मैंने ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें आती है, जो हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होने वाला है कि अबाउट हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर, उसमें हम बात करने वाले हैं. ठीक है, जल्दी कम्युनिटी में आ जाओ, तुम्हें अपडेट्स मिल जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे सॉलिडिटी सीख लेते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं वो सीखो. उसके बाद सीखो कि NFTs कैसे मिंट करना है, कैसे ये सब करना है, कैसे हम लोग कहते हैं कि कैसे एप्स बनते हैं, कैसे डैप्स बनते हैं, कैसे डीफाइस बनते हैं, ये सब सीखो एंड यू कैन डू दैट. बट अगेन इट जो सीरीज और जो शुरुआत होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट से होती है. और फुल स्टैक डेवलपमेंट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज लैंग्वेजेस, कोडिंग, ये सब तुम उसमें सीखोगे, अच्छा बेस बनेगा. Web2 में भी रहोगे और Web3 में भी एंट्री कर सकते हो. बट अगेन कोडिंग लैंग्वेज सीखना जरूरी है. कोडिंग लैंग्वेज सॉलिडिटी और जावास्क्रिप्ट सीख लो तो तुम्हें हो जाएगा. चलो, दैट्स ग्रेट. So the next question is, what other opportunities are there available to start a startup in Web3? अरे ब्रो, कौन है who is the one who asked that? Like Glenn Rumau. अरे so basically I want to tell you that this ecosystem is so much open. This ecosystem is, मतलब मैंने ही तुम्हें कितने सारे प्रॉब्लम्स तो ये सेशन में ही बताया. अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुने तो मैंने काफी सारे तुम्हें बताया. और ऐसी अपॉर्चुनिटीज कौन सी जहां तुम ग्रैब कर सकते हो. देखो, सबसे आई फील द मोस्ट इजीएस्ट वे, और कह सकते हैं कि जो शुरुआत, द इजीएस्ट वे इज, फर्स्ट ऑफ ऑल most of the people are working on creating a decentralized ecosystem. So there is a lot of opportunities. I'll tell you the sectors जहाँ पर opportunities है. You can figure out कि कौन से opportunities वो सेक्टर में तुम्हें, कौन सी प्रॉब्लम्स तुम्हें पिकअप करनी है वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में, जहां से तुम तुम्हारा स्टार्टअप बना सकते हो. फर्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन. सब लोग लगे हुए, ऐसा नहीं कि सब लोग लगे तो तुम नहीं कर सकते. सब लोग डिसेंट्रलाइजेशन में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और वो अलग अलग प्रॉब्लम्स सब लोग ट्राई कर रहे हैं फेस करने के लिए. तुम खुद सोचो, एक क्वेश्चन आया था कि यार क्या क्रिप्टो करेंसी एक मेन स्ट्रीम करेंसी बन जाएगा, या क्या वो फियाट करेंसी हटा देगा? कर लो उस पे काम. कितना अच्छा प्रॉब्लम है. तुम्हें लगता है कि क्रिप्टो करेंसी पे तुम बिलीव करते हो?
तो वो चीज पे काम कर लो। जो मैंने तुम्हें एक तो स्टार्टअप आइडिया यही दिया था कि पेटीएम के बाजू में तुम्हारा क्यूआर कोड अगर लग सकता है कि सपोज जो ग्लेन रुमाओ है, ग्लेन रुमाओ का एक स्टार्टअप है कॉल्ड फॉर एग्जांपल फोन पे है, तो Ayush, we are facing some issues. You are not audible right now. No, you're not still audible. No, you're not. We will resume in a couple of minutes. The issue is being fixed right now. Yeah, Vidisha, am I audible now? Yes, you are. Is your camera on? No, cut off. चलो, that's great. Yeah, let's start. तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर तुम्हारा जो क्यूआर कोड है अगर फोन पे के बाजू में लगा सकते हो कि जहाँ से तुम्हारा पे क्रिप्टो करेंसी में भी लोग पेमेंट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। मार्केटिंग एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे तुम खुद की अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स की मार्केटिंग है क्रिप्टो। टेक इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील टेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बिगेस्ट वेल जिसको तुम एज अ अपॉर्चुनिटी क्रैप कर सकते हो, तो बिल्ड योर स्टार्टअप। Yes, so that's the thing. Chalo. So we have a last question in the chat box. It is, Yes. could you please tell us something about BlockV? BlockV, that's great. Guys, BlockV is a specialized Web3. We are building a specialized Web3 academy for people. जहाँ पर हम आपको Web3 के एजुकेशन देंगे फ्रॉम बेस लेवल। Web3 के बेसिक से लेके तो Web3 के टॉप लेवल तक लेके जाने के लिए हम तुम्हारे लिए दिन रात काम करेंगे। एजुकेशन देंगे, ऐसा एजुकेशन देंगे जहाँ से तुम डेली बेसिस पर खुद की अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाओगे। ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जीडी सेशंस, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो। वहाँ पर हम लोग Web3 के इवेंट्स डाल रहे हैं। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं तुम जाकर अटेंड करो, वहाँ पर भी हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इवेंट्स के अपडेट्स डाल रहे हैं, Web3 के अपडेट्स डाल रहे हैं, सो दैट तुम लोग अपडेट्स को लेके फोकस रहो, तुम्हें अपडेट्स मिलते रहे। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हम लोग कर रहे हैं, विच इज वी आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर यू by student of Web3 for students of Web3. This is an academy by students of Web3 for students of Web3. Again प्रोडक्ट्स ला रहे हैं आप लोगों के लिए, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, टेक प्रोडक्ट्स जो हम लोग बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जो आपको हेल्प करेगा वो गैप को ब्रिज करने के लिए। अगेन कोर्सेज मिलेंगे, काफी सारी चीजें मिलेगी और चीजें धीरे धीरे और क्लियर होगी ब्लॉकवी के अंदर। बट दिस इज द थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ। वी आर अ टीम ऑफ 10 पीपल्स राइट नाउ। तो हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम कम्युनिटीज को रन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा कम्युनिटी ऐसा रहे कि अगर तुम लोगों को जाकर बोलो, किसी इवेंट में जाकर बोलो कि वी आर फ्रॉम ब्लॉकवी कम्युनिटी, तो वो तुम्हें एंट्री दे दे, तुम्हारे से पूछे ना कि अगर तुम्हें मना कर रहे हैं तो तुम्हें वो बोल के एंट्री करवा दे। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग वी हैव इन माइंड। चलो, या दैट्स ब्लॉकवी। We have Vidisha, we have one last question. Could you suggest some documents or resources about the major topics that you've discussed in this session? What I'll do is I'll drop will together team as a team drop on Discord, we'll drop a complete structured
आउट फॉर दिस, ये क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ कि हम लोग हमारे कम्युनिटी में कल एज अ अपडेट ये चीज़ अपलोड करते हैं। चलो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो तुम रीड कर सकते हो ऑन पर्टिकुलर थिंग्स जो मैंने तुम्हारे लिए आज तुम्हें बताइए ऑन डिटेल, अगर तुम चीज़ों को रीड करना चाहते हो तो यस हम लोग वही चीज़ करेंगे। बिकॉज आई फील कि मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो अच्छे से कम्युनिटी में ही शेयर करूँगा। सो या जॉइन अ कम्युनिटी अगेन, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। Again, the link to join the community is in the link tree, for which it is available in the chat box. अच्छा अगेन गाइस कि हम लोग कल एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, हम लोग कल मीटअप पे भी गए थे। हमारा जो कल मीटअप था हमारा नहीं था, बट हम दूसरे मीटअप्स पे भी एज ए टीम जाते हैं हम लोग। अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो हम आपको हमारे साथ ले जाएंगे अलग अलग इवेंट्स में। हम लोग अंदर से ऑर्गेनाइजर्स को कांटेक्ट करते हैं कि स्लॉट्स हमारे लिए ओपन करो एंड वी नीड स्लॉट्स फॉर अस। So yes, you will get that opportunity as well if you join a community. Yeah, वो मैं भूल गया था। Okay, Vidisha, you can end this session.